So, hello बच्चों. Today we are going to start our new chapter, that is alternating current. So, this is chapter 7, alternating current. So, in the previous lecture we have almost discussed the kind of DC current. Now, after developing the concept of electromagnetic induction, now we are become able to understand the concept of variation of electric field, electric current with the variation of magnetic field line, that is induced EMF and induced current. So, in the previous chapter, that is electromagnetic induction, as we have discussed the concept given by Tesla, that was the alternating current generator. Now we will become able to understand now what is alternating current, how the alternating current produce, and how the alternating current is entirely different with the direct current. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है. So, alternating current are basically the current which changes its magnitude continuously. एक ऐसी करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है इन अल्टरनेटिव फॉर्म. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट? द अल्टरनेटिंग करंट continuously, in we can say in harmonically, it changes its magnitude. अपने मैग्नीट्यूड को बिटवीन द मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू क्या करती है? चेंज करती है. दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. So, if we wish to represent as a form of equation of alternating current, the alternating current is given by I is equal to I naught sin omega t. Here I is called instantaneous value of alternating current. I naught is called the maximum value or peak value of current, and omega is called angular frequency. So, the term here used harmonically. Harmonically, that means anything, any physical quantity that varies continuously with some angular frequency. As in class 11th we have also discussed simple harmonic motion, and harmonic equation is represented by y is equal to a sin omega t. तो जहाँ जहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्मोनिक फंक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट द ऑसिलेटरी फिजिकल क्वांटिटी एज अ हार्मोनिक वेव फंक्शन. नो हार्मोनिक वेव फंक्शन में आपका साइन भी होता है, कॉस भी होता है. नो वी विल इफ रिप्रेजेंट एज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ साइन एंड कॉस, तो वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट द alternating current equation as I is equal to I naught cos omega t2. Now, what is the graphical presentation of the graph? If we draw the current versus time graph of sine as a sine function, so we get this form as an alternating current. And suppose we wish to represent it, this is a sine graph
And if we wish to represent as a cos form, so we can easily draw the current and time graph as a cos function. So this is a cos form, cos graph. Now here we can represent as a form of time period t by 2, sorry, t by 4, t by 2, 3t by 4 and t. Similarly we can represent as the same here. So any wave function that is harmonic may necessarily should follow the sine and cosine function respectively. Now after discussing of alternating, we can same define as a EMF, that is electromotive force or the voltage supply that is provided due to which alternating current progress. Now the EMF or the potential may also given as the same equation, E is equal to E naught sine omega t as well as E is equal to E naught cos omega t. And similarly, as a case of the current versus time graph for the alternating current, we can also get the EMF and time graph in the same way as in the sine and cosine function. So this is all about the initial introduction about the alternating current and EMF. Now after it we will discuss one by one the properties that holding by the alternating current with respective to different cases of the different kind of current circuit containing as a resistance, as a resistor, as a capacitor, as a inductor. सो अब आज हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिस्कस करने चल रहे हैं. लेकिन सबसे पहले इसमें अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वी कैन ईजिली डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, द टाइम पीरियड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. As in class 11th we have already defined for the harmonic function of wave, the time period is what? The time required to complete one oscillation. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. नो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये सब सारी चीज़ें बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एंड बिकॉज इट इज़ हार्मोनिक वेव, हार्मोनिकली क्या करती है, प्रोग्रेस करती है. तो ऑल द टर्म्स लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड. नाउ सपोज इफ वी विश टू रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, नाउ एम्पलीट्यूड इज द maximum value of current. Now suppose that we are representing is at as a EMF, तो amplitude the maximum value of EMF in either direction, positive side में and negative side में, that is called maximum value of current or maximum value of EMF. Okay. Now in alternating current we are going to discuss our second topic, that is mean value of alternating current. तो if we consider the mean value of alternating current, अगर हम लोग mean value alternating current की बात करते हैं तो हमें पता है कि to complete one cycle of alternating current it go maximum side and minimum side in either direction. So mean value of alternating current तो क्या होता है, जीरो होता है, because maximum and मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड होता है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा. दैट्स वाई इफ वी सपोज कनेक्ट अ काइंड ऑफ गैल्वानोमीटर एज अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर टू काइंड ऑफ अल्टरनेटिंग रिसोर्सेज. अगर हम किसी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को अल्टरनेटिंग रिसोर्स से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वी विल सी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर. तो गैल्वानोमीटर में बेसिकली कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जब गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज वी नो दैट 50 हर्ट्ज. दैट्स मीन इन द इफ यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन द नीडल्स शुड go through positive direction and negative direction 50 times in 1 second. But practically due to inertia, the galvanometer supposed to be not to work as a
when it is connected with the alternating resources. That's why we get no deflection in the galvanometer. Now let's talk about the during the half rotation or the half circulation of the alternating current in a पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन. तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी आती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं. देन वी विल बिकम मैथमेटिकली एबल टू से व्हाई द मीन वैल्यू और द मीन करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0. तो आइए चलते हैं करते हैं. आई मीन अब ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसमें क्या है इंटीग्रेशन है. तो आई मीन फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल हम अल्टरनेटिंग करंट की ये साइकिल के लिए, इस साइकिल के लिए, ठीक है, पहले इसके लिए निकालते हैं t/2 के लिए. तो आई मीन फॉर हाफ टी दैट इज t/2 इज गिवन बाय 1/t/2 0 to t/2 एंड आई नॉट साइन ओमेगा t dt. ठीक है, दिस इज द फॉर हाफ साइकिल. हाफ साइकिल के लिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं. नो वी वेल नो अबाउट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है हमारा, या हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 2π/ω भी होता है. अब देखिए यहाँ पे t और स्मॉल t में डिफरेंस रखिएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे आप क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे. चलिए आइए, तो 1/t/2 दैट इज t की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, कैपिटल T है यहाँ पे 2π/ω और एक 2 यहाँ पे और प्रेजेंट है एंड 0 to लिमिट में देखिए क्या करते हैं, t की वैल्यू 2π/ω जैसे यहाँ पे किया था 2π/ω, एक 2 और है आई नॉट साइन ओमेगा t dt. ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा हमारा ऊपर जाएगा, ω/π. सेम थिंग विल हैपन हेयर 0 to π/ω आई नॉट साइन ओमेगा t dt. चलिए अब आई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग. तो आई नॉट ओमेगा, ये आई नॉट को बाहर निकाल लिया अपॉन पाई एंड 0 to π/ω साइन ओमेगा t dt. चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t क्या होता है. साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t/ω. अच्छा ऐसा होता है, ठीक है. तो आई नॉट ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा, देखो यहाँ वाला ओमेगा, ये वाला इसको बाहर कर लिया, माइनस कर लिया, और ये आ गया हमारा क्या, माइनस कॉस ओमेगा t फ्रॉम लिमिट 0 to कितना है π/ω. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेशन किया है. नाउ वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ t. लेकिन यहाँ से ओमेगा को हटा देते हैं, काट देते हैं. तो अब हो गया माइनस का आई नॉट बाई पाई एंड दिस विल बिकम व्हाट, माइनस देखो ये बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है, माइनस ही बाहर आ गया आपका, कॉस ओमेगा t अपर लिमिट ओमेगा t की वैल्यू π/ω माइनस 0 रखेंगे तो कॉस 0 ही तो होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा भाई. कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है. तो यहाँ से हो गया हमारा माइनस आई नॉट बाई पाई, और ये आ गया -1, कॉस 0 की वैल्यू भी -1, -2 एंड माइनस फिर से मिल गया, तो हो गया 2 आई नॉट बाई पाई. सो दिस इज़ फॉर दिस हाफ साइकिल. ये हमारा सिर्फ हाफ साइकिल के लिए निकला. नाउ इफ़ वी कैलकुलेट फॉर द अदर हाफ साइकिल, तो अदर हाफ साइकिल कहाँ से जा रही है, t/2 से हमारी कहाँ पे जाएगी, t पे जाएगी. अगर इसको भी कैलकुलेट करेंगे सेम वैल्यू आएगी, बट इट विल बी माइनस ऑफ 2 आई नॉट बाई पाई. कितना होगा, माइनस का 2 आई नॉट बाई पाई होगा. और इफ़ वी सम for the both cycle, half cycle this and half cycle, we get I mean is equal to 0. So that's why we can say that the mean value of alternating current is 0. Similarly चूँकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, तो EMF के केसेस में क्या होगा, द मीन वैल्यू ऑफ EMF फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बिकम आल्सो 0. नाउ प्रैक्टिकली अगर आप करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और चांस नहीं होगा, जस्ट इसमें आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी. नाउ यू हैव टू टॉपिक, व्हाट, फर्स्ट कैलकुलेट द आई मीन
for the next half cycle and also go through the second topic that is for the E mean, that is EMF mean, हाफ साइकिल उधर भी निकालिए। फटाफट इसको तीनों डेरिवेशन करके आप देख सकते हैं कि मीन वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है दैट मीन कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है।